Hello, 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 hello. Good morning. So yes, it's 7 o'clock. So let's continue with our revision. As you know, we are doing topic wise revision. And अभी तो कहते हैं बोर्ड का टाइम टेबल भी आ गया है. And somewhere in the month of May इको का पेपर आ रहा है. So कोई टेंशन नहीं है, मतलब काफी टाइम. रिवीजन भी हमारा चालू हो गया है. 4 टॉपिक्स वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड एज यू नो. रिकॉर्डिंग साथ में मैं सेव करते जा रहा हूँ एट फ्लाई पर. एज यू नो, डिमांड, elasticity of demand, market, and which one topic we have done? Supply and market. So these 4 topics are done. But each topic we will be covering in revision slowly and steadily. So now, today, as we had planned, today we are going to do the topic utility analysis, as we have already talked about in the last lecture. So we can say we'll be done with 5 topics actually: utility, demand, elasticity of demand, supply, and market. Fine, that's good. And then slowly and steadily, as we have planned, we will proceed with the other topics also at a predetermined date, at a predetermined time that is announced, as you know. The test series is already going on, as you know. In this month, economics 2 tests were conducted. One more test is going to be conducted tomorrow, as far as the timetable goes. And tomorrow, as we know, the topics are, there are 3 topics for tomorrow. Excuse me: supply, market, and index number. These are the 3 topics for tomorrow, if you have seen the test series timetable. And paper pattern remains the same because we are concentrating on the question answer pattern rather than objective. Yes, when we will be having full 80 marks papers, which also timetable I think has come out, right? For the month of February, our classes timetable has come out, which is actually prelims. So that itself will also be covered. In other words, we have been covering, or we have covered all the topics individually. ये जो टेस्ट हुए हैं पहले हुए और अब जो हुए हैं, तो इंडिविजुअल टॉपिक्स कवर हो गए हैं. और जो टॉपिक बाकी है, इंडेक्स नंबर वगैरह, उसका टेस्ट कल हो रहा है. And then you'll have prelims of 80 marks, 3 hours, and as you know, they are going to be offline. You have to come and write the paper for 3 hours, right? I have already made 5 model papers. You may have collected the same from the office for extra practice. Basically, if you see, the objective questions have been taken from the book itself. So the answers are already available in the book. But now the prelim papers are going to be a very, very challenging task. They are also going to be as per the paper pattern prescribed. They are also going to be allotted the same number of marks for each topic as prescribed by the Maharashtra board that we have already talked about. इंग्लिश चलेगी ना, तो वो भी बिल्कुल उस तरीके से ही होगा. तो those papers, or in fact prelims, as far as the timetable goes, everybody has got it on WhatsApp. From the month of February, the prelims of our classes are starting. We'll be having at least 3 prelims, and each paper is going to be, of course, different. Okay, चलो ठीक. सो रिवीजन में आगे बढ़ते हैं. अगली बार हम टॉपिक नंबर 1 ले लेंगे, जो हमारा माइक्रो एंड मैक्रो है. तो फिर हमारे 6 टॉपिक हो जाएंगे: माइक्रो, मैक्रो, यूटिलिटी, डिमांड, इलास्टिक ऑफ डिमांड, सप्लाई एंड मार्केट. राइट. तो नेक्स्ट लेक्चर, before I forget, the topic is going to be micro and macro. So these were some of the announcements, and you know we have to be on time. मौसम तो अच्छा ठंडा ठंडा है, लेकिन साथ में पढ़ाई भी तो करना है. So now let us continue with our topic, utility analysis. ये पूरा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, यूटिलिटी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. अब हम रिवीजन कर रहे हैं. अगर ये टॉपिक हम क्लास में पढ़ाते हैं तो इट टेक्स 6 आवर्स, है कि नहीं? 1.5 के 4 लेक्चर्स मिनिमम लगते हैं, तब जाके टॉपिक होता है. बट नाउ वी आर डूइंग रिवीजन, तो इट विल बी इजीली डन इन दिस 1.5 hour. In 1 lecture of 1.5 hour, I take a target to complete the topic, and you have seen easily हो जाता है. तो this is the target for the day. Revision means to the point, बात करके आगे जाएंगे. Okay. I hope you have done this topic at least once. You have read it. You have given exam for this, because only on basis of that you will be able to understand the revision. Okay. And there you go. The first word that we have is utility. इस वर्ड के ऊपर पूरा टॉपिक है. क्या है ये यूटिलिटी?
इकोनॉमिक्स कहता है, इकोनॉमिक साइंस है, यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी के वांट सेटिस्फाई करने के पावर को यूटिलिटी कहते हैं। अगर उस कमोडिटी में तुम्हारी जो भी वांट है वो सेटिस्फाई करने का पावर है, तो ये माना जाएगा कि उसमें यूटिलिटी है। और अगर उसमें वो पावर नहीं है, मतलब उसमें यूटिलिटी नहीं है। You just have to go to that commodity and ask a question. ए कमोडिटी, ए कमोडिटी, क्या तुम मेरी वांट पूरी करते हो? हाँ, तो यूटिलिटी है। ना, तो यूटिलिटी नहीं है। इट्स एज सिंपल एज दैट। जैसे भूखे के लिए खाना यूटिलिटी है, प्यासे के लिए पानी यूटिलिटी है, बराबर ना दिखे उसके लिए चश्मा यूटिलिटी है। ड्रग एडिक्ट के लिए ड्रग्स, यू टेल मी, ड्रग एडिक्ट के लिए ड्रग्स यूटिलिटी है कि नहीं है? आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम यू। कम ऑन, गिव मी द आंसर। वेरी गुड, गुरप्रीत ने बिल्कुल सही कहा। ड्रग एडिक्ट को क्या चाहिए? ड्रग्स चाहिए, तो उसके लिए ड्रग्स यूटिलिटी है। सिगरेट पीने वाले के लिए सिगरेट। अरे तरुण, कैसे हो आप? अरे वाह, आज तो तरुण ने आंसर दिया भाई। लाइफ में पहली बार तरुण ने आंसर दिया। पूरा पोर्शन खत्म होने के बाद तरुण आज आंसर दे रहा है। कम ऑन। सिगरेट पीने वाले के लिए सिगरेट यूटिलिटी है कि नहीं है? यस। दारू पीने वाले के लिए दारू यूटिलिटी, यस, बिकॉज इट इज सेटिस्फाइंग हिज वांट। वो गुड है कि बैड, उससे इकोनॉमिक्स को मतलब नहीं है। इज इट सेटिस्फाई माय वांट? दैट्स इनफ। सुइसाइड करने वाले के लिए पॉइजन यूटिलिटी है कि नहीं है? सुइसाइड करने वाले के लिए पॉइजन यूटिलिटी है। वेरी गुड। तो यूटिलिटी मींस वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। तो इसलिए ये लाइव रिवीजन लेक्चर आपको अटेंड करना ही है। या आपके लिए रिवीजन चालू किया है। एक एक टॉपिक हम धीरे धीरे करते जा रहे हैं। पोर्शन तो पहले ही हो गया था अपना, नो इश्यू, और आराम से बढ़िया रिवीजन भी हो जाएगा। सो लेट्स सी देयर आर चांसेस दैट क्लास में स्टार्ट नाउ। तो फिर बाकी आगे का रिवीजन क्लास में होगा, डिपेंड्स व्हेन द क्लास स्टार्ट्स। तो बड़ी सिंपल सी बात, ए कमोडिटी, ए कमोडिटी, क्या तुम मेरी वांट पूरी कर सकते हो? हाँ, तो यूटिलिटी है। ना, तो यूटिलिटी नहीं है। तो यही लिखा हुआ है। और यूटिलिटी जो है वो बेस है ऑफ कंज्यूमर्स डिमांड, ये भी मैंने कहा था। ये सब बात हमारी हो गई है। अगर वो कमोडिटी में यूटिलिटी नहीं है तो वो डिमांड ही नहीं होगी। बिल्कुल सही। जिसे लेटर से अभी 1 जनवरी एंड सो ऑन से पहले 31 एंड सो ऑन, दारू की दुकानों पे बहुत गिरदी थी, रश था। भाई अपना आने जाने का रास्ता तो यही है, तो रास्ते में कुछ दारू की दुकानें आती है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। दे वर गिविंग सम डिस्काउंट ऑल्सो, बाय 2 गेट 1 फ्री वगैरह। बताओ मैंने कितनी बॉटल खरीदे? आंसर इज 0। व्हाई डिड नॉट आई परचेज इट? क्योंकि तरुण हम तो कभी पीते नहीं हैं, क्योंकि मेरे लिए उस चीज की यूटिलिटी नहीं है। यूटिलिटी है ही नहीं तो डिमांड कहां से पैदा होगी? इसलिए यूटिलिटी का जो बेस है या बेसिस है वो कंज्यूमर्स, सॉरी, कंज्यूमर्स डिमांड का जो बेसिस है वो यूटिलिटी है। ओके फाइन, यही सब लिखा हुआ है, वी हैव ऑलरेडी डन दैट। यूटिलिटी के साथ क्वेश्चन आता है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। क्या है यूटिलिटी के फीचर्स? यूटिलिटी को जरा गहराई में जानने की कोशिश करें। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन अ ब्रॉडर मैनर। डू यू रिमेंबर, हमने सब कोडवर्ड से किया है। यूपीस, एमपीस, राइस बेस्ट। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के चावल सबसे बेहतर। बेहतर समझता है? बेस्ट। कम ऑन, लेट्स सी हाउ मच रिमेंबर। पहला तीनों में यूपी और एस में डज नॉट मीन, डज नॉट मीन, डज नॉट मीन आएगा। यूटिलिटी डज नॉट मीन यूजफुलनेस। यूटिलिटी डज नॉट मीन्स प्लेजर। यूटिलिटी डज नॉट मीन सेटिस्फैक्शन। तीनों में डज नॉट, डज नॉट, डज नॉट आएगा। कैसे मैं साबित करूंगा? देखो, एक्सक्यूज मी, डज नॉट का मतलब नहीं कि हमेशा नहीं है, इसको ऐसे बोलना है। जो चीज यूटिलिटी देती है वो नॉर्मली यूजफुल होती है, बट हमेशा यूजफुल होगी ऐसा जरूरी नहीं है। यूटिलिटी ऑलवेज डज नॉट मीन यूजफुलनेस।
Let's prove. This is a glass of warm water with honey and lemon. ये मैंने पी लिया। सुबह सुबह मेरा तो आदत है, तुम लोगों को मालूम है, हनी लेमन का। ये मुझे यूटिलिटी दे रहा है? हाँ भाई, सुबह ठंडी के मौसम में थोड़ा गर्म पानी पीना विथ हनी एंड लेमन इज गुड फॉर हेल्थ। यूटिलिटी है, हाँ। यूजफुल है, हाँ। फिर 7 to 10 मेरा लेक्चर, इसके बाद FYJC रिवीजन है, समझो। उनका भी पोर्शन हो गया, अभी रिवीजन चालू, पोर्शन होने वाला है, एक लेक्चर बाकी है, उसके बाद रिवीजन चालू। तो मैंने कहा उसके बाद मुझे भूख लगेगी तो मैं नाश्ता करूंगा, इडली वड़ा, दाल वड़ा, मेदू वड़ा, सांबर। यूटिलिटी है, हाँ। यूजफुल है, हाँ। हेल्थ के लिए अच्छा है इडली वगैरह। लेकिन लेट अस से फिर एक मेरा दोस्त मेरे से मिलने आया, अरे कैसा है यार, ठीक है नाश्ता कर, बोले कर लिया। बोला, चल क्या क्या है, बाकी सब ठीक है। तो फिर उसने सिगरेट निकाली और पीना चालू कर दिया। मैंने कहा ये क्या कर रहा है? बोला अरे तो क्या हुआ, तेरे का तो इतना बड़ा है ना, यहाँ पी। मैंने कहा नहीं, ये तेरे लिए अच्छा नहीं है। अब यू टेल मी, मेरे दोस्त के लिए सिगरेट यूटिलिटी है? देखो सब रॉन्ग आंसर देंगे। दोस्त के लिए सिगरेट यूटिलिटी है? कम ऑन, आंसर फास्ट, चलो जल्दी बोलो आंसर। यूटिलिटी है, हाँ। पर उसके लिए यूजफुल नहीं है। यूजफुल है? यूजफुल नहीं है। वेरी गुड, देव ने बिल्कुल सही कहा। तो इसे साबित होता है कि यूटिलिटी ऑलवेज डज नॉट मीन यूजफुलनेस। वो कहते हैं ना, हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो इट इज हैविंग यूटिलिटी बट इट इज नॉट यूजफुल। वही लिखा हुआ है, और लिखने वाला जो पार्ट है, रीड करने वाला, वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। यूटिलिटी ऑलवेज डज नॉट मीन्स प्लेजर, ये बात भी सही है। ऑलवेज डज नॉट मीन्स प्लेजर। एग्जाम्पल, मैंने गर्म पानी वार्म वाटर पिया, क्या मस्त है, वाओ टेस्टी। यूटिलिटी भी है, प्लेजर भी है। लेकिन अगर समझो आपको कोरोना वायरस का इंजेक्शन लेना पड़ रहा है, और वो बड़ा वाला इंजेक्शन खापाक करके इधर घुसा दिया डॉक्टर ने, और कुछ लोग होते हैं ना, उनको इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, तो बड़े हो जाएंगे तो भी यार डर लगता है उनको, जबकि होता कुछ नहीं, चींटी काटती वैसे लगता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनको डर लगता है। अब ये इंजेक्शन वो ले रहा है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। कोविशील्ड ज्यादा अच्छा है ना शायद। कोवैक्सीन का तो अभी भी 3rd स्टेज बाकी है ट्रायल का। चलो कोविशील्ड जो भी है, ये इंजेक्शन लेने से उसका इम्यून सिस्टम अंदर से ऐसा हो जाएगा कि भाई कोरोना का चांसेस लगभग 0 हो जाएगा। यूटिलिटी है, हाँ है, क्योंकि हो तो अभी भी रहे हैं कोरोना केसेस। अब मेरे कजन दुबई में है, उसको बहुत ज्यादा हो गया और वेंटिलेटर तक आ गया, बट बच गया आखिर वो। तो अब बचना लिखा है तो बच जाएंगे, बच गया वो। वैसे एक कजन भाई जो है दुबई में, तो उसको भी हो गया कोरोना। तो लेट अस से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको कोवैक्सीन दे रही है, यूटिलिटी है, हाँ है। लेकिन ये इंजेक्शन, जिसको बहुत डर लगता है इंजेक्शन, उस आदमी की बात कर रहा हूँ, लेट अस से अर्जुन इंजेक्शन से बहुत डरता है, नहीं 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 नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए। उसको पकड़ के डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, यूटिलिटी है, बट क्या उसको प्लेजर मिल रहा है? टेल मी, प्लेजर आ रहा है? कड़वी दवाइयाँ, इंजेक्शन, प्लेजर नहीं है। तो ये हम यूटिलिटी को और गहराई में जान रहे हैं। Utility does not mean satisfaction. This is a very tricky point. Many students are not able to answer this point. I will tell you. In English, actually, utility and satisfaction are basically used as a similar words. I'm getting utility from that. I'm getting satisfaction from that. But technically, in economics, there is difference between these two terms, and the difference is of a very small thing actually. The utility concept is such where we say that the utility comes before consumption of the commodity, and satisfaction is something which comes after consumption of commodity. Only that is the difference. बाकी सिमिलर ही है, यूटिलिटी बिफोर है और वो आफ्टर है। एज आई सेट, लेट्स से इट्स अ वेरी सनी डे। अभी तो विंटर चल रहा है, अच्छा मस्त ठंडा मौसम है। बट सपोज हो खिड़की बंद रखना पड़ रहा है, क्या ठंड है। ओ माय गॉड, एसी की तो जरूरत ही नहीं है। ओ इस टाइम इलेक्ट्रिक बिल भी कम आएगा, चलो अच्छा है। और 4-5 दिन बोलते हैं ऐसा क्लाइमेट रहेगा, कल तो 16 डिग्री तक पहुंच गया था, तो इसके आसपास रहने वाला। I say, okay, I'm very thirsty. It's a sunny day, so I've gone for shopping actually. And then after doing shopping and all, I'm very thirsty. So I asked the Nimbu Pani wala uncle,
एक गिलास नींबू पानी देना, बहुत प्यास लग रही है. What is this? This is utility. I'm thirsty. I want lime juice, lime water. फिर मैं बैठ के उसको पिया. हमेशा पानी बैठकर पिए. पीने के बाद मैंने कहा वाह, क्या नींबू पानी है, क्या टेस्ट है, मजा आ गया. दिस इज सेटिस्फैक्शन. यू कम टू पिज्जा हट. पिज्जा हट इज इन आवर बिल्डिंग. You all are welcome. Please come to our building, to Pizza Hut, and call me also. We'll have pizza together. You pay the bill. तो we go to Pizza Hut. हाँ, एक अच्छा मस्त चीज बर्स्ट पिज्जा देना. आहा, चीज बर्स्ट मेरा फेवरेट. ये यूटिलिटी है. फिर आपने पिज्जा खाया. अब मजा आया. सेटिस्फैक्शन. तो यूटिलिटी कम्स बिफोर कंजम्पशन, सेटिस्फैक्शन कम्स आफ्टर कंजम्पशन. यूपीएस. जैसे वो खाने का शौक भी कई लोग को होता है ना. आजकल वो यूट्यूब पे वो एक दो भाई है जो खाते ही रहते. उन लोग का विवाह चैलेंज करके क्या है, यूट्यूब चैनल है ना कुछ ऐसा. अच्छा. यूपीज एमपीज राइस. एमपी स्टैंड फॉर मल्टीपर्पज. यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज. यू कैन गेट सेटिस्फैक्शन फ्रॉम वेरियस वेज. जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल ऑफ मिल्क. ऐसे हमारे जो अभी तो मैं यहाँ रहता हूँ बहुत साल से, 8 साल हो गए. पहले वहाँ रहते. नया नगर में मस्जिद जो है, मेन मस्जिद, इट्स कॉल्ड शम्स मस्जिद. उसके अपोजिट सुपर डेयरी है. सुपर डेयरी भी उतना ही फेमस है. इनफैक्ट सुपर डेयरी तो मस्जिद से भी पहले से. वहाँ ये सुपर डेयरी है, बहुत फेमस डेयरी. वहाँ अभी से ही, सुबह से ही दूध लेने के लिए लोग आ जाते हैं. कोई 1/2 लीटर, कोई 1 लीटर, कोई 2 लीटर लेके जाते हैं. ये लोग सब दूध क्यों लेके जा रहे हैं? ये लोग दूध को यूज करेंगे. कोई चाय बना रहा है, कोई कॉफी बना रहा है, कोई दूध गर्म करके पी रहा है, whatever. So they are getting utility from milk in various ways. So it is multi-purpose. Multi-purpose means many uses. S, UPs, MPs. कोडवर्ड के साथ पढ़े तो काफी आसान हो जाएगा, लेकिन कोडवर्ड के साथ लिंक बनाने आना चाहिए. Each point you should make a link in your brain. S, subjective. Many students get confused in this point also. This point is not so tough. What it means is it differs. ये word पकड़ लो. From person to person. ये word पकड़ना है. It differs from person to person. Utility जो है differ करती है. Economics is a science, you know, I know, everyone know, which studies human behavior. और human behavior सबके लिए सेम तो नहीं होता. ये person to person में कैसे समझाऊं? बहुत easy है. Let us say for example, you like strawberries. Strawberry is your favorite fruit. But let us say I don't like strawberry. मेरे को स्ट्रॉबेरी खाना पसंद नहीं है. स्ट्रॉबेरी क्रश पसंद है, दूध में डाल के पीते हैं, आइसक्रीम डाल के, लेकिन स्ट्रॉबेरी नहीं पसंद है. तो आप जो हो वो स्ट्रॉबेरी के दीवाने हो. मैं नहीं हूँ. यू लाइक पालक. आई जस्ट कांट ईट पालक. इफ आई ईट पालक आई विल वॉमिट इट. क्या मालूम, मेरे सिस्टम को पालक नहीं जमती. अगेन डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. I like mangoes. You like mangoes. Julissa does not eat mangoes. Differs from person to person. There is a beautiful painting. I admire it. Oh, what coloring, what painting. But a blind man cannot admire it. He does not have eyes. He can't see. तो डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. एक बंदे के लिए एक चीज में यूटिलिटी है, हो सकता है दूसरे के लिए ना भी हो. यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट. रिमेंबर राइस. नाउ वी हैव कम टू राइस. रिलेटिव कॉन्सेप्ट मतलब डिफर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस. यू शुड नो वेयर विच वर्ड यू हैव टू यूज अगर मार्क्स चाहिए तो. इफ यू विल बी परफेक्ट यू कैन इजीली स्कोर ओवरऑल 90 प्लस आउट ऑफ 100. क्योंकि कॉलेज का जो तुम्हारा रहेगा उसमें तो कॉलेज देखो, मोस्टली अगर आप अच्छा करोगे तो आपको लगभग फुली देगी, 18 19. कुछ कॉलेज 20 आउट ऑफ 20 भी देती है. अगर उतना अपने को वहां मिल गया तो 80 के पेपर में हम लोग 70 प्लस तो ला ही सकते हैं. तो अगर 70 मैं यहाँ लेके आता हूँ, 20 वहाँ लेके आता हूँ, तो 90 मेरा हो ही रहा है. और 75 76 तक भी जा सकते हैं. 96 तक इको में हाईएस्ट गया है भाई. ऐसी बात नहीं है, 90 प्लस तो गया ही है, 96 तक गया है. इट्स वेरी पॉसिबल. इट्स नॉट दैट कि कोरोना चल रहा है तो खाली पास हो गए तो बस चलेगा. क्यों भाई, अच्छे मार्क्स लाएंगे ना. And suppose in future studies, BCom, BAF, all these or many of these topics are going to come in your syllabus. Demand, supply, economics में आएगा ही. If you do CFC, many of you may be doing CFC, तो उसमें भी ये सब आने वाला है. Okay.
राइट, रिलेटिव कॉन्सेप्ट, लेट मी गिव एग्जांपल ऑफ टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। पहले हम प्लेस टू प्लेस का एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से, देखो ठंड अपने वहाँ चालू हुई, लेकिन अभी भी इतनी ठंड नहीं चालू हुई कि स्वेटर निकाल के पहनना पड़ रहा है। लास्ट ईयर तो अपने को स्वेटर निकाल के बैठना पड़ता था, याद है अपना 11th का लेक्चर होता था तो सुबह सुबह 7 बजे कितना अंधेरा होता था और हम सब स्वेटर वगैरह पहन के आते थे। अभी भी उतनी नहीं हुई है, नहीं? तो लेट अस से फॉर एग्जांपल अब थोड़ी ठंड और बढ़ेगी, ऐसा वेदर फोरकास्ट है। तो फिर हम मम्मी को क्या बोलेंगे, मम्मी खुद ही निकाल के दे देगी, ये ले स्वेटर पहन ले, सुबह तुझे क्लासेस जाना है, लेट अस से क्लासेस चालू होती है तो आप स्वेटर पहन के आओगे ना। तो वो स्वेटर जो घर में पड़ा हुआ था वो अब निकाला यूज करने के लिए। ये एग्जांपल है टाइम टू टाइम। इन समर सीजन दैट स्वेटर हैज नो यूटिलिटी, इन विंटर सीजन दैट स्वेटर हैज यूटिलिटी। कोई भी एग्जांपल लो, अम्ब्रेलास, वेयर आर योर अम्ब्रेलास? मम्मी हैज स्टोर्ड देम, मम्मी ने संभाल के रखा है। जब जून जुलाई रेनी सीजन आएगा तो मम्मी खुद देगी, ले भाई बारिश आ गई ये छतरी ले। हर साल थोड़ी नई छतरी खरीदेंगे। दिस इज अगेन एग्जांपल ऑफ टाइम टू टाइम। नाउ लेट मी गिव एग्जांपल ऑफ प्लेस टू प्लेस। आई से, लेट अस से ग्रेप्स, अभी ग्रेप्स का सीजन आ गया, नासिक। नासिक में मेरा एक कजन रहता है, मासी मासी का घर है नासिक में। तो हम लोग कभी कभी जाते हैं। और विंटर में अगर आप नासिक जाओगे, एक तो क्लाइमेट बहुत अच्छा है वहाँ का विंटर में, और दूसरी बात ग्रेप्स, इतने ग्रेप्स के पागल हो जाओगे। क्या प्राइस होगा अच्छी क्वालिटी ग्रेप्स का नासिक में, यू वोंट बिलीव। नासिक में अच्छी क्वालिटी के ग्रेप्स आपको 30-40 रुपीज़ के जी में भरपूर मिल जाएंगे। जो यहाँ 100 रुपीज़ चल रहा है वो वहाँ 30 रुपीज़ होता है। इतना ग्रेप्स है नासिक के आजू बाजू। मैं तो सोच रहा हूँ बिजनेस ही चालू कर दूँ, नासिक से ग्रेप्स लाऊं होलसेल में बेचूं। जैसे मैंगो का होलसेल बिजनेस होता है तो ग्रेप्स का भी हो सकता है। एग्जाम्पल है। तो नासिक से मैं ग्रेप्स लाता हूँ और मुंबई लाके बेचता हूँ। अगेन दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ विचुअलिटी, प्लेसबिलिटी। यहाँ ग्रेप्स के बहुत शौकीन लोग हैं, पीपल लाइक ग्रेप्स, दे आर रेडी टू बाय 100 रुपीज़ के जी खरीदते हैं। तो मैं वहां से लाके यहाँ बेचूंगा, ये प्लेस यूटिलिटी है। वहां पे लोग खा खा के थक गए, ग्रेप बहुत हो गया उनका। वहां तो वाइन यार्ड्स है भैया पूरे नासिक में, वाइन यार्ड, ग्रेप का वाइन बनता है ना वगैरह एंड सो। आप कभी गए होंगे, रोड से जाओगे तो वाया इगतपुरी जाओगे, बहुत ही मजा, बहुत अच्छा रूट है। भिवंडी से होते हुए सीधा होते हुए इगतपुरी, इगतपुरी से होते हुए नासिक, और आगे जाओगे तो शिरडी। तो अगेन दिस इज टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। तो प्लेस टू प्लेस का एग्जांपल, जैसे नासिक से ऑरेंज उठा कर, ऑरेंज नहीं, ग्रेप्स उठा के मुंबई में बेचे एंड सो। राइस, आई, इंटेंसिटी ऑफ वांट, यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट। अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो यूटिलिटी उस चीज की ज्यादा है, इंटेंसिटी कम है तो कम है। बहुत प्यास लगी है तो पानी विल गिव यू हाई यूटिलिटी, कम प्यास लगी है तो विल गिव यू लो यूटिलिटी। राइस, RIC, कैन नॉट बी मेजर्ड, माप नहीं सकते। क्यों नहीं माप सकते? ये एक एहसास है, फीलिंग, एंड फीलिंग कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। So if I am very thirsty, I have a glass of water. I can't count and tell you how much utility I got from this glass of water. It can only be felt. ये एक feeling है. It cannot be expressed in numbers. It's an abstract concept. Cardinal मतलब counted in number is not possible. है ना? Okay. हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव की बात बाद में हो जाएगी। एंड ये पॉइंट भी कई लोग कंफ्यूज होते हैं। एथिकली न्यूट्रल, एथिकली मतलब मॉरल्स, एंड न्यूट्रल मतलब ना पॉजिटिव साइड ना नेगेटिव साइड। तो एथिकली न्यूट्रल मतलब इट इज नॉट कंसर्न वेदर द वांट इज गुड वांट और बैड वांट, इट इज जस्ट कंसर्न विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट। वांट पूरी हो रही ना, कहानी खत्म। वो वांट अच्छी है कि बुरी, इकोनॉमिक्स को इससे मतलब नहीं है। स्टार्ट में ही हम लोग ने डिस्कस कर लिया, जैसे सिगरेट, दारू, न्यूक्लियर बॉम्ब, जो भी हो। तो इसलिए कहते हैं यूटिलिटी इज मॉरली कलरलेस, मतलब उसका कोई रंग नहीं है। अच्छा, एज यू नो हर टॉपिक में ऑब्जेक्टिव्स हमने पहले ही बुक में डाल दिए हैं, खाली डाल ही नहीं दिए, डिस्कस भी किए हैं। तो लेट मी टेल यू, ऑलरेडी द बुक कवर्स 500 ऑब्जेक्टिव्स, मैंने काउंट तक किए मालूम, सब 500 प्लस जा रहा है। क्लास 2 पार्ट हर टॉपिक में मैंने किए, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक एंड अदर ऑब्जेक्टिव्स, सब मिला के ऑलरेडी, मतलब ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव्स बुक में इंक्लूडेड है। तो अलग से कोई ऑब्जेक्टिव की बुक कहाँ से मिलेगी? कुछ भी बोलने का, कोई बंदे ने लिख दिया ऑइको की ऑब्जेक्टिव बुक मिलेगी क्या, तो क्लास में हमने क्या किया फिर? ऑब्जेक्टिव ही किया ना। 500 ऑब्जेक्टिव किए ना हमने क्लास में, तो वही तो ऑब्जेक्टिव्स है कि नहीं? तो ऑल ऑब्जेक्टिव्स आर ऑलरेडी गिवन इन द बुक एंड विच हैव बीन डन बाय अस।
एज द टॉपिक हैज प्रोग्रेस्ड। तो सारे ऑब्जेक्टिव, बाकी सब्जेक्ट का मुझे मालूम नहीं है, एसपीओसी का तुम्हारा ऑब्जेक्टिव बुक में है कि नहीं है, वो आप वो सर से बात करें, ओसी सर से, एसपी सर से, मोस्टली होगा या नहीं होगा जो भी है। बट एज फार एज इकोनॉमिक्स इज कंसर्न, ऑलरेडी ईच टॉपिक कवर्स द ऑब्जेक्टिव। ये देखो, ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, हर टॉपिक में ऑब्जेक्टिव्स हमने क्लास में ही कवर किए हैं। रेडी ना? ओके। तो आई होप आपने पढ़ा होगा, ये सब पढ़ा है कि नहीं, हमने क्लास में किया है। तो फीचर्स बड़ा आंसर है, बट रिवीजन हो गया है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। वी आर टॉकिंग अबाउट फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। यू विल गिव मी द आंसर्स नाउ। यूपीज, एमपीज, राइस। तो आई विल आस्क यू, इसमें से कौन कौन सा पॉइंट है? राइस का आर क्या है? राइस का आर, कम ऑन, कहां गए सब? राइस का आर क्या है? वेरी गुड, राइस का आर, कम ऑन, वेटिंग फॉर योर आंसर। आर फॉर, आर से क्या आता है? यूपीज, एमपीज, राइस, वेरी गुड देव, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। एमपीज का एस क्या है? एमपीज का एस क्या है? एस, यूपीज, एमपीज, तो एस क्या है? एस फॉर सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, वेरी गुड, ओके। तो ये रहा आपका यूटिलिटी और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट हम जानेंगे मार्जिनलिटी और टोटलिटी क्या होता है, क्योंकि वो आपको नहीं मालूम होगा तो आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी नहीं कर सकते, इसलिए हमें दोनों कॉन्सेप्ट देखना होगा। तो ध्यान से सुनो, ये हम जानते हैं। अच्छा, एमपीज राइस बेस्ट मतलब बेसिस ऑफ डिमांड, ये हमको मालूम है, यूटिलिटी बेस है डिमांड का, ओके। ये हम जानते हैं कि रियल लाइफ में यूटिलिटी नहीं मापा जा सकता, बिकॉज यूटिलिटी एक एहसास है, फीलिंग है। बट लेट अस अज्यूम दैट वी कैन मेजर यूटिलिटी। लेट अस अज्यूम you can measure it, you can count it in numbers. Let us assume, now let us say you are consuming apples one after the other. You are consuming apple and you get x amount of utility from the first apple, y from the second apple, z from the third apple, whatever. नाउ जो सारा कंजम्पशन आपने किया है उससे जो सारी यूटिलिटी मिली है उसको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगी टोटल यूटिलिटी। यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। वर्ड पकड़ के चलो, क्या वर्ड है? ऑल द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। तो ये है टोटलिटी। जैसे आप खाते जाओगे और खाते जाओगे, टोटलिटी बढ़ती जाएगी, है कि नहीं? एग्जाम्पल दिया है, एक ऑरेंज 12 यूनिट देता है, दूसरा ऑरेंज 8 यूनिट देता है। समझो दो का एग्जाम्पल है तो दोनों का 20 हुआ। और फॉर्मूला आप mu ऑफ 1 प्लस 2, जितने भी यूनिट्स हैं n नंबर तक जितने भी है सबको ऐड करो तो आपको टोटलिटी मिलेगा, है कि नहीं? चलो, तो टोटलिटी इज n, हाँ, टोटलिटी ये होगा, ठीक है। टोटलिटी का फॉर्मूला तो मालूम पड़ गया, मार्जिनलिटी कहाँ से है? टोटलिटी बोलना चाहिए, हाँ, सम ऑफ मार्जिनलिटीज बोल सकते हैं ना। मार्जिनलिटी क्या है? एक एक कमोडिटी से जो यूटिलिटी मिलेगा उसको हम बोलेंगे टोटल यूटिलिटी, सॉरी मार्जिनलिटी। एक एक कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी। मार्जिनलिटी मीन्स यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम वन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। ये वर्ड पकड़ के चलो, वन एडिशनल यूनिट, वन एडिशनल, एक और खा रहा हूं उससे जो यूटिलिटी मिली वो मार्जिनलिटी। इसका एक और फॉर्मूला है, आप डिफरेंस इन टोटलिटी से भी ला सकते हो। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है, दो ऑरेंज से मुझे 20 यूनिट्स यूटिलिटी मिली और तीन ऑरेंज से 25 मिली, तो तीसरे ऑरेंज से कितने मिली? 2 से 20, 3 से 25, तो डिफरेंस कितना हुआ? 5। और फॉर्मूला भी है, टोटलिटी ऑफ n यूनिट्स माइनस टोटलिटी ऑफ n माइनस 1, क्योंकि हमें एक यूनिट से निकालना है ना, तो ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द लॉ। ओ माय गॉड, आपको पता है ना, लॉ एग्जाम में आता ही है मोस्टली। देखो, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डीएमयू, इन तीन में से मिनिमम एक तो आना ही है एग्जाम में, फिक्स। जब हम कोई लॉ की बात करते हैं, इकोनॉमिक लॉ की बात करते हैं, इकोनॉमिक लॉ शोज रिलेशन बिटवीन टू इकोनॉमिक फिनोमेना, दो इकोनॉमिक फिनोमेना का रिश्ता। तो लॉ में हम बेसिकली चार चीज लिखते हैं। डू यू रिमेंबर क्या चार चीज लिखते हैं? स्टेटमेंट, शेड्यूल, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन, ये चार चीज, सही है कि नहीं? तो ये चार चीज हम लॉ में लिखते हैं। तो हम लॉ आपको बताएंगे,
बट पहले कॉन्सेप्ट समझ लें। हमें पता है एक इंसान एक ही वक्त पे अपनी सारी वांट पूरी नहीं कर सकता। तुम्हें इसी वक्त खाना भी है, इसी वक्त पानी भी पीना है, इसी वक्त डांस भी करना है, इसी वक्त बुक भी पढ़ना है, इसी वक्त एग्जाम भी देना है, इसी वक्त स्विमिंग भी करना है, इसी वक्त साइकिलिंग भी करना है। ऐसा नहीं हो सकता। एक इंसान एक वक्त पे अपनी एक वांट पूरी कर सकता है। अ पर्सन कैन सेटिस्फाई वन वांट एट वन टाइम। हाउ? बाय कंज्यूमिंग मोर एंड मोर यूनिट्स। भूख लगी, खाना खाओ खाओ खाओ, पेट भर गया। प्यास लगी, पानी पियो पियो पियो, प्यास बुझ गई। एक टाइम पर आप एक वांट पूरी कर सकते हो। और ये लॉ हमें यही समझाता है कि एक टाइम पे एक आदमी अपनी एक वांट कैसे पूरी करता है, बाय कंज्यूमिंग मोर एंड मोर यूनिट्स। अब जैसे वो और यूनिट्स कंज्यूम करते जाएगा, हर यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी कम होते जाएगी। बोलो, कम होते जाएगी। बोलो, कम होते जाएगी। तो पूरे लॉ का कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, यूटिलिटी कम होते जाएगी। बोलो, कम होते जाएगी। बोलो, कम होते जाएगी। तो as and as the consumption increases, the utility will go on falling, the marginality will go on falling। और यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। इसका लॉजिक क्या है, क्यों कम होते जाएंगे? कैन एनीबडी आंसर दिस? जो आंसर करेगा उसको 100 रुपीज अभी मिलेगा गूगल पे से। कम ऑन, जल्दी बोलो। ये देखो मोबाइल ऑन हो गया, ऑन हो जा। लो, क्यों कम होती जाएगी भाई? क्यों? जैसे जैसे मैं और कंजम्पशन करते जाऊंगा, तो जो मिलने वाली यूटिलिटी है, क्योंकि मेरा पेट भरते जा रहा है, तो हर एक्स्ट्रा यूनिट से जो मिलने वाली यूटिलिटी है वो कम होती जाएगी, क्योंकि पेट भरते जा रहा है, मेरी बॉन्ड सेटिस्फाई होती जा रही है। दैट इज द कॉन्सेप्ट। और पूरा डिटेल में हमने एप्पल का एग्जांपल लिया था, आपको याद होगा। अर्जुन कॉलेज गया था, कॉलेज से थका रहा घर आया था, मम्मी भी नहीं थी, घर में कोई नहीं था, चाबी उसके पास थी। फिर उसने एप्पल खाया, एक के पीछे एक एप्पल खाते गया, और एप्पल से मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जा रही थी। याद आया? क्योंकि पेट भरते जा रहा था। दैट इज द लॉ। ये लॉ अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। ये सब स्टार्ट में वही लिखा हुआ है। और पहले तो प्रोफेसर गॉसिन ने प्रपोज किया था, बाद में मार्शल ने दिया, उनकी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1819। स्टेटमेंट याद है आपको? द एडिशनल बेनिफिट which a person derives, ऐसे एक एक उंगली करके हमने पढ़ा था। additional benefit which a person derives from a given increase in stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has. Additional benefit which a person derives from a given increase in stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has. I hope you remember this। आज रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। और आप ऐसा एक टेबल बना सकते हो 1 2 3 5। और ये 10 8 6 4 2 0 -2। ये माइनस का भी लॉजिक आपको बताता हूँ। पहले तो आप जैसे जैसे खा रहे हो यूटिलिटी कम हो रही है, फिर 6th एप्पल पे मान के जाओ आपका पेट भर जाएगा। उसके बाद अगर आप और खाओगे तो नेगेटिव यूटिलिटी आएगी, उल्टी कर दोगे या जो भी है, वो बोलते हैं नेगेटिव यूटिलिटी। और ये डायग्राम भी हमने क्लास में बनाया हुआ है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये डायग्राम तो एग्जाम में बनाना पड़ेगा। स्टेटमेंट, शेड्यूल, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर आपने माइनॉरिटी लिखा, यहाँ हम यूनिट्स ऑफ एक्स या नंबर ऑफ एप्पल लिख सकते हैं। अब जैसे जैसे आप खाते जा रहे हो, यूटिलिटी कम होती जा रही है। पहले एप्पल में 10, यू आई नो यू कैन प्लॉट इट, कोई ग्राफ पेपर की जरूरत नहीं है, नॉर्मल पेपर बना सकते हैं। 8 ऐसे आप नीचे बनाओगे इसको। ये करते करते 6 पे 0 आएगी, और उसके बाद 7 पे नेगेटिव जाएगी। ये ब्लैक पार्ट आपको दिख रहा है, ये शेडेड पार्ट, ये है आपका डिस यूटिलिटी और नेगेटिव यूटिलिटी। ठीक है, यही एक्सप्लेनेशन है जो मैंने अभी आपको समझाया। हर लॉ में होते हैं assumptions and exceptions। Let's see who remembers। assumption क्या होते हैं? conditions जिनके ऊपर वो लॉ बेस्ड होता है। अगर assumptions मतलब conditions पूरे नहीं होंगे तो लॉ सेटिस्फाई नहीं होगा। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर दोस कंडीशंस। हाँ, बाय द वे, assumptions पूरे नहीं होंगे तो लॉ सेटिस्फाई नहीं होगा, इसका मतलब लॉ उल्टा चलेगा। कंजम्पशन बढ़ेगा और यूटिलिटी बढ़ेगी। ओ माय गॉड्स,
वो तो लॉ के खिलाफ हो जाएगा। हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कंजम्पशन बढ़े और यूटिलिटी कम हो। तो उसके लिए कुछ एजम्पशन पूरे करने होंगे। Those are the conditions. And the code word, if you remember, is UC, नहीं क्या था? हाँ, UC square NOR square. UC square NOR square. बोलो UC square NOR square. यही था ना? U अज्यूम कर रहे हैं हम कि कमोडिटी होमोजेनस है, मतलब सिमिलर है इन शेप, साइज, टेस्ट, कलर। अगर वो सिमिलर नहीं होंगे तो लॉ ऑपरेट नहीं होगा। एग्जाम्पल, पहले वाला एप्पल कड़वा है, इट्स बिटर, एंड दूसरे वाला मीठा है, इट्स स्वीट। पहला एप्पल खा के आप थूक दोगे, थू 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 गंदा है, दूसरा वाला मीठा है। नाउ द सेकंड एप्पल इज एक्चुअली गिविंग यू मोर रियलिटी देन द फर्स्ट एप्पल। हम ऐसा नहीं चाहते, तो हम अज्यूम करेंगे कि कमोडिटी होमोजेनस मतलब सिमिलर है इन शेप, साइज, टेस्ट का। कंटिन्यूटी, एक के पीछे एक खाना है। अगर गैप होगा तो भूख तो बढ़ जाएगी। तो सेकेंड यूनिट विल गिव मोर रियलिटी देन द फर्स्ट यूनिट। सब में हमें ये लिखना है, ये पॉइंट पूरा होना चाहिए। नहीं हुआ तो सेकेंड यूनिट विल गिव मोर देन द फर्स्ट यूनिट एंड द लॉ विल नॉट अप्लाई। हाँ, कार्डिनल नंबर में आपको खाली इतना लिखना है कि इट इज अज्यूम कि रियलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स। ये पॉइंट सिंपल है। अगर रियलिटी नंबर में मेजर नहीं कर सकते तो कैलकुलेट कैसे करेंगे ना। नो चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंस फैशन। अगर आपका टेस्ट प्रेफरेंस फैशन चेंज हो गया, अगेन द सेकंड यूनिट विल गिव मोर देन द फर्स्ट। जैसे बच्चा रोटी खा रहा है, बहुत नाटक कर रहा है, मैं नहीं खाऊंगा, अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इतने में अक्षय कुमार, धोनी और अपने जो बेस्ट रोहित शर्मा, ये सब क्रिकेट प्लेयर्स की एड आई कि रोटी खाना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अब बच्चे का साइकोलॉजी चेंज हो गया, हाँ लाओ रोटी लाओ, मैं खाऊंगा। तो सेकंड विल गो मोर देन द विल गिव मोर देन द फर्स्ट। वन यूज, ये एक्चुअली होमोजेनस पॉइंट के साथ कनेक्ट होता है। मतलब सेम वही यूज होना चाहिए। अगर आप मिल्क ले रहे हो, पहला ग्लास जो है वो सादा मिल्क है, दूसरा बॉर्नवीटा है, तीसरा आइसक्रीम शेक है वगैरह, तो होप सो इट इज पॉसिबल कि थर्ड ग्लास में गिव यू मोर देन द फर्स्ट ग्लास। तो इसलिए सेम यूज होना चाहिए। रीजनेबल साइज, मतलब साइज बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए। Let us say you are having water in spoon, you are thirsty and you are drinking water in spoon, तो obviously second third spoon will give more than the first, because first spoon से तो दांत भी गीले नहीं होंगे। तो बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। एंड रैशनल, द कंज्यूमर इज अ रैशनल पर्सन, ही ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन, भूखड़ नहीं होकर। तो यू सी स्क्वायर एन ओ आर स्क्वायर, when all these conditions are satisfied, only then the law will operate. If these conditions are not satisfied, the law will not operate. U, units of the commodity are homogeneous. C, continuity. C, cardinal number. UC square, NOR square. N, no change in taste preference fashion. O, one use. R, reasonable size. R, rationality. Perfect. Very good. Now you know साथ में exceptions भी होते हैं। I repeat again, या तो वो लोग आपको separate question पूछेंगे, state the assumption of the law, या state the exceptions of the law of DMU, और या तो वो लॉ के साथ पूछेंगे। कई बार वो लॉ के साथ भी पूछते हैं, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ, ऑल्सो स्टेट द assumptions एंड द एक्सेप्शंस। तो फिर आपको assumption एक्सेप्शन भी लिखना होगा। और कई बार नहीं भी पूछते हैं, बिकॉज फिर पेपर बहुत लेंदी हो जाएगा। स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ, assumption एक्सेप्शन आर नॉट रिक्वायर्ड, दे विल गिव यू इन द क्वेश्चन कि assumption एक्सेप्शन लिखना है कि नहीं। अगर कुछ नहीं दिया तो फिर आपको लेकिन पॉइंट्स तो लिखने पड़ेंगे assumption एक्सेप्शन, because a law is not complete until you also states its assumption and exception। वापस बोल रहा हूँ। तो इन द बोर्ड एग्जाम नॉर्मली दे गिव यू क्लियरली कि हाँ भाई लिखना है कि नहीं लिखना है, बट फिर भी नहीं भी दिया है तो आपको एजम्पशन और एक्सेप्शन के पॉइंट्स तो लिखने ही होंगे। अब पूरा बोला है तो फिर पूरा लिखना पड़ेगा। इसलिए नॉर्मली एजम्पशन एक्सेप्शन सेपरेट क्वेश्चन ही आते हैं। ओके, एक्सेप्शन क्या होता है, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। जहां लॉ सीधा चलता है कि उल्टा चलता है, कम ऑन टेल मी फास्ट। एक्सेप्शन किसे कहते हैं, जहां लॉ उल्टा चलता है। अब इस लॉ के हिसाब से बोले तो कंजम्पशन बढ़ेगा और यूटिलिटी भी बढ़ेगा। ओई माँ, यस यूटिलिटी भी बढ़ेगा। ऐसा क्यों होता है?
इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, और ह्यूमन बिहेवियर कभी प्रेडिक्टेबल नहीं है। तो अब हम देखेंगे कुछ एक्सेप्शंस, बाद में क्वेश्चन बैंक भी बनाएंगे, अभी तो बहुत टाइम है, डोंट वरी। एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ, कोई कोड वर्ड याद है? वड़ा समोसा लस्सी मस्त है, पाव भी, वड़ा समोसा पाव, क्या कहा गया? हाँ, वड़ा पाव समोसा लस्सी मस्त है। यस, वड़ा पाव समोसा लस्सी मस्त है, मस्त है। वड़ा, वाइन्स एंड ड्रग्स, एक्सेप्शन टू द लॉ, जो बंदा वाइन और ड्रग लेता है उसको एज एन एज वो ज्यादा कंज्यूम करता है, उसको और यूटिलिटी मिलता है, मजा आता है, ये लॉ के खिलाफ है। पाव, पावर, जिसको और पावर मिल जाता है, वो अभी आया ना वो तांडव, तांडव पता नहीं क्या है, मैं तो देखा नहीं, सुना है, ऐड में आता है, न्यूज में आता है। तो जैसे वो और पावरफुल होते जाता है और उसका वोट्स मिलते जाते हैं और वो बड़ा मिनिस्टर बनते जाता है, और पावरफुल होता है और उसको अच्छा लगता है, एज यू अक्वायर मोर एंड मोर पावर, आपकी उल्टी और बढ़ेगी। समोसा, सॉन्ग्स एंड म्यूजिक, कुछ लोगों को गाने का शौक होता है, जब वो नए नए गाने सुनते हैं उनको और मजा आता है, यूटिलिटी बढ़ती है। क्योंकि यूटिलिटी सिर्फ खाना या पीना नहीं है, सुनना भी यूटिलिटी है, देखना भी यूटिलिटी है। लिटरेचर, जो बंदों को बुक पढ़ने का शौक है, एज दे रीड न्यू बुक दे गेट मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन। वड़ा पाव समोसा लस्सी मस्त है। माइजर, कंजूस, जैसे जैसे वो और पैसा कलेक्ट करता है, ही गेट्स मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन। एंड है हॉबीज, coin collection, stamp collection, he gets more and more satisfaction. So in all these cases, if I tell you vada pav समोसा लस्सी मस्त है, मस्त है, ये अपना कोड वर्ड है। एज कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग, द यूटिलिटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। These are against the law because they are exceptions. And as I said, economics is science which studies human behavior, so it happens. But let me tell you one very, very important thing. These are the exceptions theoretically, but in real, these are not the exceptions. Now, how the hell can we say that? ये exception है, पर ये exception real नहीं है, ऐसा कैसे? Can anybody in this class tell me how is this possible? भाई सुबह सुबह ठंडी में उठना इतना आसान नहीं है, एक्सेप्टेड पॉइंट, बट तुमने तो अभी आदत बना ली है और वो सही भी है, जल्दी उठना है जल्दी सोना है, दैट इज द बेस्ट। कैन यू टेल मी, ये एक्सेप्शन हो कि भी एक्सेप्शन नहीं है, रियल नहीं है, व्हाई? कम ऑन, वेटिंग फॉर योर आंसर। कौन आंसर देगा? एक्सेप्शन होते हुए भी ये एक्सेप्शन रियल नहीं है, कम ऑन गुरप्रीत, कौन है जो आंसर दे सकता है? देव? नहीं, क्यों नहीं है, वही तो सवाल है ना देव, कैसा क्यों नहीं है? मार्शल के हिसाब से ये एक्सेप्शन होते हुए भी एक्सेप्शन नहीं है, क्यों नहीं है? नहीं, रियल लाइफ में तो होता ही है, बेवड़ा तो और पिएगा और पिएगा और पिएगा और मजा आएगा उसको। नोबडी, कम ऑन, वेटिंग फॉर आंसर। 50 से ज्यादा लोग हैं, कोई तो आंसर देके बताएगा, जबकि एक्सप्लेन किया हुआ और नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा भी है। बिकॉज यश, हर एक्सेप्शन में कोई ना कोई एजम्पशन पूरा नहीं हो रहा। और जब हमने लॉ पढ़ा था तो हमने क्या कहा था? लॉ कब चलेगा? जब एजम्पशन पूरे होंगे तो। So I can prove that in all the exception, one or the other assumption is not satisfied. अभी बोलता हूँ, like power और वाइन्स एंड ड्रग्स, ये दोनों पॉइंट में रैशनैलिटी कंडीशन पूरा नहीं हो रहा। एक बंदा जो रैशनल है, मैं कहूंगा वो तो दारू कभी पिएगा ही नहीं, बेवकूफ होगा अगर वो पिएगा, तो वो रैशनल नहीं है मतलब। और हमने कहा था रैशनल। सॉन्ग्स एंड म्यूजिक, अच्छा, और माइजर में भी, माइजर, वाइन्स एंड ड्रग्स एंड पावर में रैशनैलिटी कंडीशन नहीं होता है। माइजर रैशनल नहीं है, हाई पैसा ऊपर लेके जाएगा, नहीं ना। पावर, काहे का पावर? अभी सांस रोकेगी अभी मर जाएगा। अभी एक और खबर आई थी, एक और दूसरा बंदा था, मतलब दुबई में ही मेरा जो कजन है जिसको कोरोना हुआ, उसका कोई एक दोस्त रात को सांस फूली फूली फूली, सुबह हॉस्पिटल ले गए, मर भी गया।
डायरेक्ट लास्ट स्टेज कोरोना, सीधा वायरस सीधा हाई लेवल पे अटैक करता है। एक्चुअली कोरोना के 3 स्टेज बोल सकते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और हाई। अगर माइल्ड है, बुखार उखार होगा, थोड़ा सांस वासी होगा, ठीक हो जाएंगे। मॉडरेट है, ऑक्सीजन चढ़ाया है सर, थोड़ा हॉस्पिटल गए तो दवा वाली है, ठीक हो गया। और हाई मतलब सीधा वेंटिलेटर डायरेक्ट, मतलब बचने का चांस ही नहीं। तो वो तो डिपेंड करता है आप किसकी क्या किस्मत है, क्या बॉडी कितना फाइट कर सकते हैं। अभी तो बहुत केसेस कम हो गए, लेकिन अभी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो मैं कहता हूँ ये माइज़म मर जाएगा लेकिन सुधरेगा नहीं ज़िंदगी। अच्छा, सॉन्ग, लिटरेचर और हॉबीज़ में होमोजेनिटी कंडीशन नहीं हो रही है। अगर आप एक ही गाना ज़िंदगी भर सुनोगे, पागल हो जाओगे ना। कितनी बार वो गाना सुनोगे? एक ही बुक्स ज़िंदगी भर पढ़ता है कोई? नहीं। तो होमोजेनिटी, हॉबीज़ एक ही स्टैम्प कलेक्ट करता है कोई? नहीं। तो होमोजेनिटी कंडीशन इज़ नॉट सैटिस्फाइड। तो ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, एक्सेप्शन आर नॉट रियल, एज़ इन, ये कोई आंसर नहीं दे पाया, एज़ इन ईच ऑफ द एक्सेप्शन one or the other assumption is not satisfied. ये याद रखना। वाइन्स एंड ड्रग माइज अ पावर, रैशनल नहीं हो। सॉन्ग्स, लिटरेचर, हॉबीज होमोजेनिटी, व्हाटएवर। सो अभी तक आपके कुछ क्वेश्चंस हुए हैं, लेट्स से आराम से हो जाएगा, डोंट वरी, काफी टाइम है। अगर मैं यहाँ पर, यू हैव द नोटबुक आल्सो अलोंग विथ यू। हमने नोटबुक में रिवीजन पार्ट अलग किया हुआ है। यूटिलिटी एनालिसिस, क्वेश्चन बैंक, तो साथ में लिख भी लेते हैं। एवरीबॉडी राइट इन योर नोटबुक अलोंग विथ मी। और अब तो क्लास में तो आएंगे ही हम लोग, मोस्ट प्रोबेबली, जैसे मैंने बताया अभी, ये नेक्स्ट वीक में शायद क्लासेस का परमिशन मिल जाए। सो क्लासेस में सबकी बुक चेक करना है मुझे। क्वेश्चन 1, यूटिलिटी, स्टेट इट्स फीचर्स, कोड आपको मालूम है। ये साथ में हम कोड भी बना लेंगे जहाँ कोड है। तो हमारे पास बढ़िया सी क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगी। तो प्लीज राइट अलोंग विथ मी, यूटिलिटी एंड इट्स फीचर्स, फिर हम टोटलिटी और मार्जिनलिटी में गए, फिर लॉ में। मैं एक साथ ही लिख लेता हूँ, एक्सप्लेन टोटलिटी एंड मार्जिनलिटी, state and explain the law of D and U. Assumptions of law of DMU. तो साथ में क्वेश्चन बैंक बन रही है बढ़िया सी, यू सी स्क्वायर एन आर स्क्वायर। एक्सेप्शंस, लॉ ऑफ डी, वड़ा पाव, समोसा, लस्सी मस्त है। देखिए कोडवर्ड भी साथ में बढ़िया बढ़िया हो। तो सब लोग पहले इतने 5 क्वेश्चन बढ़िया लिखते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट अदर क्वेश्चंस। पहले इतना काम कर लेते हैं। यूटिलिटी क्या है, एमयूटीयू क्या है, लॉ क्या है, और लॉ के साथ लॉ के एजम्पशंस और लॉ के एक्सेप्शंस, पहले इतना काम कर लें, देन वी विल प्रोसीड अहेड। ओके, यू कैन टेक 2 मिनट्स और बढ़िया बढ़िया साथ में रिवीजन करते जाना है। वेरी गुड। स्लोली स्लोली आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी along with its features, then TUMU आगे और आएगा, law, assumptions, exceptions. Okay, take 1 minute, write it fast. जट से 5 आंसर एक बार रिकैप भी कर लें, एक बार पॉइंट्स देख लें। हम लोग गेम खेलते हैं,
LKS, आर यू देयर? LKS, LKS कहाँ है? लहर, कमल शर्मा, पहले रिवाइज कर लो इसको। गेम ये होगा कि मैं इसमें से कोई क्वेश्चन पूछूंगा, यू हैव टू टेल मी द आंसर, ओके? कम ऑन, जस्ट गो थ्रू कर ले, आराम से हो जाएगा। पहले इतना काम करना है, हर टॉपिक को रीड करना है, उसके ऑब्जेक्टिव्स हमने डिस्कस किए, ऑब्जेक्टिव्स गो थ्रू करना है, ये सब काम करते रहना। एक्सेप्शन तक हो गया है, तो 1 मिनट, ये 5 आंसर एक बार 2 मिनट ले लें, खाली पॉइंट्स देखें, फिर हम आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ से टॉपिक थोड़ा ट्विस्ट होता है, ओके? झट से कर ले, मैं थोड़ा पानी पी लूँ, फटाफट 5 क्वेश्चंस। ओके, यस, तो यूटिलिटी के फीचर्स, एजम्पशन, एक्सेप्शन, लॉ, ये सब हो गया, ठीक है? सो वेरी गुड, तो नाउ यू आर एक्सपर्ट इन दैट, आई नो। तो चलो फिर आगे ही बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारा? टॉपिक के साथ चलते जा रहे हैं, बढ़िया सी नोट्स अपनी रेडी है और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एवरीथिंग इज कवर्ड। नाउ वी आर कमिंग टू रिलेशनशिप, ये रहा ना, बिटवीन टोटलिटी एंड मार्जिनलिटी। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटलिटी एंड मार्जिनलिटी? मार्जिनलिटी क्या है हमने जाना, यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। टोटलिटी क्या है वो भी हमने जाना, यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। बट उनको आपस में उनका क्या संबंध बन रहा है, दैट वी विल लाइक टू अंडरस्टैंड, और वही हमारा ये बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहा है, रिलेशन बिटवीन एमयू एंड टीयू। एज यू नो, जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे, यू नो दैट यूटिलिटी कम होती जाएगी, एवरीबडी नोज दैट। लेकिन एक बात और है, जैसे आप कंजम्पशन बढ़ा रहे हो, टीयू बढ़ती जा रही है, टोटलिटी वो तो बढ़ना ही है। ये देखो ना, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। लेट अस से यूनिट्स ऑफ एक्सेल, यूनिटी माइनॉरिटी 10, 18, 24। कोई बोलेगा सर हम लोग ये कैसे याद करेंगे? मत याद रखो ना, आप खाली एमयू याद रखो, और एमयू हमने अभी पढ़ा है 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2। अब इसी को यहाँ ऐड कर देना है। पहले एप्पल से मान लो 10 यूनिट्स है और सेकंड एप्पल से 8 है, तो 10 + 8 इज इक्वल टू 18, 18 + 6 इज इक्वल टू 24, +4 इज इक्वल टू 28, +2 इज इक्वल टू 30। ऐसे आपका टोटलिटी कॉलम बन जाएगा, ओके? नाउ व्हाट यू कैन सी, अब इनको डायग्राम में बनाएंगे कि मार्जिनलिटी तो कम होती जा रही है, फिर जीरो हो गई और फिर नेगेटिव हो गई। एमयू जो है, ये देखो एमयू कब है, नीचे आई 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 आई, जीरो हो गई और नेगेटिव हो गई। और अगर आप टीयू को देखोगे, डायग्राम एक पेज पे ले लेता हूँ,
ये डायग्राम जब एमयू टीयू पूछेंगे तो करना है, नहीं तो नहीं करना। टीयू को आप देखोगे तो टीयू बढ़ रहा है, देखिए 10, 18, 24, 28 बढ़ रहा है, बढ़ते 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 30 तक मैक्सिमम गया और उसके बाद वो भी गिर रहा है। जब नेगेटिविटी होगी तो वो गिरेगा, कैसे? लेट्स सी द डायग्राम। ये देखिए दिस इज टी यू, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है, एकदम स्ट्रेट नहीं बनाना है, कॉन्सेंट्रेट पे नहीं है ना, थोड़ा ऐसा कर्व टाइप देना है। जब ये जीरो होगा ना तो ये मैक्सिमम होगा, और उसके बाद जब ये नेगेटिव होगा तो टी यू भी गिरना चालू हो जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। देखो वापस देखो, एम यू ऐसे नीचे आएगा, जीरो होके माइनस में जाएगा। ये अप टू द स्केल बनाने की जरूरत है, अगर चाहिए तो आप अप टू द स्केल भी बना सकते हो सर। ये टी यू ऐसे जाएगा, जब एम यू जीरो है तो टी यू मैक्सिमम है, जब एम यू नेगेटिव है तो टी यू ऑल्सो स्टार्ट फॉलिंग। ऐसा पहली बार हुआ है 7वें एप्पल पे, टी यू गिरने लगा है। ओके अच्छा, 6th एप्पल पे हमारा पेट भर गया, तो उसको हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं, ये एरो के वहां जो पॉइंट आएगा, पॉइंट ऑफ सैटिटी। सैटिटी मीन्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम जहां पेट भर गया। ओके, क्लास में पढ़ा हुआ है, मैं तो खाली रिवाइज कर रहा हूँ। ये देखें, पहले जब हम खाना चालू करते हैं तो टी यू और एम यू स्टार्ट में सेम रहता है क्योंकि पहला एप्पल है, फिर टी यू बढ़ता है एट ए डिमिनिशिंग रेट, एम यू नीचे गिरता है, टी यू मैक्सिमम पहुंचता है तो एम यू मिनिमम होता है, जहां एम यू जीरो होता है, मिनिमम तो नहीं बोलेंगे, जीरो होता है, पॉइंट ऑफ सैटिटी। उसके बाद जब आप और खाओगे, आई होप सबने एक बार एटलीस्ट ये पढ़ा है, तो एम यू नेगेटिव हो जाएगा और टी यू विल ऑल्सो स्टार्ट फॉलिंग, दैट इज गिवन इन दीज पॉइंट्स विच वी हैव स्टडीड, है कि नहीं? ओके, देन वी कम टू अ क्वेश्चन, क्रिटिसिज्म ऑफ द लॉ। ये अकेला लॉ है जिसमें क्रिटिसिज्म क्वेश्चन भी है। लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई में आपको क्रिटिसिज्म नाम का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। क्रिटिसिज्म क्या होता है? क्रिटिसिज्म का मतलब होता है बुराई, बुराई, लिमिटेशन। और आपको अगर याद होगा तो हमने इस लॉ को क्रिटिसाइज किया था, मार्शल के इस लॉ को, ये अपना क्वेश्चन बैंक साथ में चल रहा है, मार्शल के इस लॉ को हमने क्रिटिसाइज किया था। क्रिटिसिज्म क्या था वो क्रिटिसिज्म? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बैंक चल रहा है। डू यू रिमेंबर देयर वाज अ कोड वर्ड वी हैड डन? क्रिटिसाइज, बुराई करना है। मतलब मार्शल को फूल माला नहीं पहनाना है, जूतों का हार, उसे घोड़े पे नहीं बिठाना है, गधे पे बिठाना है, एंड ऑल दैट। लेट्स सी कहाँ है क्रिटिसिज्म ऑफ द लॉ। एवरीथिंग इज देयर, डोंट वरी। डू यू रिमेंबर हमने कोड वर्ड बनाया था, मुन्नू सी एस, एम यू एन यू सी एस, मुन्नू सी एस। भाई ये आंसर तो है ना सिलेबस में। आपको बता दूं, रिलेटेड सिलेबस में इस टॉपिक में से खाली एक क्वेश्चन लिखाया गया है और वो है इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉ। वो हम नहीं पढ़ेंगे, बाकी सब पढ़ेंगे। मुन्नू सी एस, एम यू एन यू सी एस, क्रिटिसिज्म ऑफ द लॉ। अगर आपको याद होगा, ये देखो डिलीटेड सिलेबस की फाइल में हमेशा रेडी रखता हूँ। याद रहे जो सिलेबस डिलीटेड है वो कोई हालत में पढ़ना नहीं है हमको, क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड ने खुद उसको डिलीट किया है। यू कैन सी दिस, एज फार एज यूटिलिटी इज कंसर्न, इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉ और उससे रिलेटेड एग्री डिसएग्री, ये दो नहीं है। तो देखो आज हमारा यूटिलिटी हो जाएगा, डिमांड हो गया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया है, सप्लाई हो गया है, मार्केट हो गया है। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग माइक्रो मैक्रो ही ले लेंगे, तो क्या होगा, लाइन से अपने 6 टॉपिक हो जाएंगे, है कि नहीं? 3A 3B को अगर आप 2 गिनो तो 6 हो जाएंगे, है कि नहीं? फिर बांटने की बात बाद में करते हैं हम लोग, पहले हम लोग एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम माइक्रो मैक्रो करेंगे। और माइक्रो मैक्रो आप अगर एक बार रीडिंग नहीं करके आओगे तो नहीं समझेगा, तो या तो आप उसका वीडियो लेक्चर देख लो, रीडिंग कर लो, तो ही आएगा, नहीं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेट मी टेल यू। अच्छा, वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिटिसिज्म ऑफ द लॉ। आई रिपीट, क्रिटिसिज्म का मतलब क्या है? बुराई। हम इस लॉ की बुराई कर रहे हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट, कहाँ गया न्यू शेड? हाँ, तो मार्शल ने जो ये लॉ बनाया हम उससे सहमत नहीं है, वी डू नॉट एग्री विद दैट, वी फाइंड मेनी मिस्टेक्स इन दैट, and those mistakes or limitations are the criticisms of the law. Let's see, criticism of the law किधर गया भाई? ये रहा, मुन्नू सी एस एम, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। लॉ ऑफ डीएमयू ये कहता है कि हम यूटिलिटी माप सकते हैं, और वो हिसाब से हमने लॉ किया, एम यू 10, 8, 6, 4, 2। बट भाई सच बोलो,
इन रियल लाइफ क्या यूटिलिटी माप सकते हैं? यू टेल मी द आंसर, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। क्या रियल में यूटिलिटी माप सकते हैं? कैन यू रियली माप आउट द यूटिलिटी? वेरी गुड गुरप्रीत, नहीं माप सकते, बिकॉज वो एक एहसास है, एक फीलिंग है, जो हम नंबर्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये तो आप अज्यूम करते हो कि यूटिलिटी माप सकते हैं, जो एक घटिया assumption है, जिससे मैंने एग्जाम्पल दिया था। सारे एग्जाम्पल काल्पनिक है, जीवित या मृत्यु किसी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं। मेरा और कैटरीना का प्यार आसमान से भी ऊंचा है और सागर से भी गहरा है। क्या आप उसको माप सकते हो? कैन यू माप आउट इट? अभी हम लोगों की न्यू मूवी आ रही है, दो था टाइगर। एक था टाइगर गई ना, अब दो था टाइगर में मैं ही हूं। कैन यू माप आउट इट? नो, इट कैनॉट बी एक्सप्रेस इन नंबर्स। हम है कि नहीं, कभी नंबर्स में माप नहीं सकते। ओके, अनरियलिस्टिक एजम्पशन। मिस्टर मार्शल, तूने कितने कितने घटिया एजम्पशन डाले रे पागल। यू सी स्क्वायर, एन ओ आर स्क्वायर, सबके सब फालतू। यूनिट्स आर होमोजेनस, कंटिन्यूटी, नो चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंस फैशन, वन यूज, रीजनेबल साइज, सब बकवास। इन एक्चुअल लाइफ ये एजम्पशन पूरे नहीं हो सकते। आप कैसे बोल सकते हो होमोजेनस, सब एक जैसे होना चाहिए? सब एक जैसे कैसे होंगे? एप्पल खाना सब एक जैसे, ऐसे कैसे होंगे? नो चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंस फैशन, ऐसा थोड़ी है, टेस्ट प्रेफरेंस फैशन चेंज होगा। वन यूज, दूध पियो तो दूध ही पियो, क्यों पियो? मेरे को नहीं पीना, मैं लस्सी बना के पीऊंगा, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पीऊंगा, तेरा क्या जाता है? तो अनरियलिस्टिक एजम्पशन। मुन्नू, एन, नॉट एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल गुड्स। इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल गुड्स क्या होते हैं? सच गुड्स विच आर परचेज ओनली वंस, एक से ज्यादा बार नहीं खरीदते। जैसे फॉर एग्जांपल टीवी। डू यू बाय 5 टेलीविजन्स? क्या हम लोग 5 टीवी एक साथ खरीदते हैं? नहीं। क्या 5 वॉशिंग मशीन खरीदते हैं? 5 एसी खरीदते हैं? नहीं। Many goods are purchased only once. So this law will not operate because for this law you have to consume one after another. मुन्नू, utility depends upon other factors also. इंसान का दिमाग बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो हम बोलते हैं जैसे जैसे हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा यूटिलिटी कम होगी, जैसे जैसे हमारा स्टॉक बढ़ेगा यूटिलिटी कम होगी। लेकिन मैं प्रूव कर सकता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन द अदर पर्सन स्टॉक ऑल्सो, जेलेसी वगैरह होती है ना। लेट अस से लहर, जो पूनम गार्डन में रहते हैं, उनके पास 5 बारबी डॉल्स हैं। जब वो छोटी थी, जब का एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड में। उसकी नेबर है, उसका नाम है कहर, उसके पास भी 5 बारबी डॉल है। अभी कहर 6th डॉल लेके आई और वो आके इस लहर को बता दी कि मेरे पास तो अलग डॉल है, मेरे पास 6 डॉल है, बारबी डॉल है, सब एक जैसी डॉल है। अब लहर को गुस्सा आया, अरे यार उसके पास 6 डॉल है, मेरे पास 5 ही, मैं एक और लेके आऊंगी। और वो 6th डॉल लेके आई। अब पता है आपको, लहर को 6th डॉल 5th डॉल से ज्यादा यूटिलिटी देगी। जेलेसी, क्योंकि उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। तो इंसान की नेचर कई बार ऐसे होती है। वैसे तो लहर जरा भी जेलस पर्सन नहीं है, जो उसकी पर्सनालिटी से हमें पता है, बट फिर भी एग्जाम्पल था, क्यों लहर, सही बात है कि नहीं? तो ये है अदर फैक्टर्स। एंड सी एस, कॉन्स्टेंट मार्जिनलिटी ऑफ मनी। मनी में ऐसा कहा जाता है कि मार्जिनलिटी कांस्टेंट है, जो गलत है एक्चुअली। वही तो मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, बुराई कर रहा हूँ। मनी में भी मार्जिनलिटी कांस्टेंट नहीं होती, बल्कि कम होती जाती है। आई कैन प्रूव इट। जैसे आपके पास और पैसा आते जाएगा, आप अमीर बनते जाओगे, तो पैसे की इंपॉर्टेंस आपकी नजरों में कम होती जाएगी। एक करोड़पति आदमी के लिए 100 रुपया कोई वैल्यू नहीं रखेगा शायद, या बहुत कम वैल्यू रखेगा। लेकिन गरीब आदमी के लिए 100 रुपया बहुत है, उसका एक दिन का घर का खर्चा निकल जाएगा। एंड सिंगल वांट, यू जस्ट से वन वांट एट अ टाइम, बट रियल में तो कई वांट्स हम एक साथ पूरी करते हैं। एक ही वांट से थोड़ी ना काम चलने वाला है। तो ये इसके क्रिटिसिज्म है, बुराई बुराई बुराई, वेर वी आर क्रिटिसाइजिंग दिस लॉ। व्हाट इज द कोड वर्ड? मुन्नू, सी एस, एम, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, कोड के साथ जाना है। यू, अनरियलिस्टिक assumption. N, not applicable to indivisible good. U,
Utility depends upon other factors also. C. Constant marginality of money. S. Single word. Very good. Now, state and explain the importance of the law. ये लॉ पढ़ के क्या फायदा? इसका बहुत ही बढ़िया मेरा कुटवट था देवदास पारो फिर से मिलके रोए. बट गाइस ये क्वेश्चन अभी सिलेबस से निकाल दिया है. तो इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉ नहीं है, नहीं है, नहीं है. तो हमको पढ़ना नहीं है, नहीं है. अगर कोई क्वेश्चन जाता है सिलेबस से अर्जुन, तो उसका ऑटोमेटिक, ऑब्जेक्टिव, डिस्टिंग्विश, डिफाइन, एक्सप्लेन सब सिलेबस से जाता है. It's not that the question is gone and the definition will come in the exam. It's not possible. The concept itself is deleted from the syllabus. So that's a good news for you. एक बड़ा आंसर सिलेबस से निकाल दिया है. And I repeat, that question is importance of the law. So we are not going to study that because it is not in the syllabus. Okay, very good. तो मैं लिखूंगा भी नहीं, जो सिलेबस में है नहीं तो अपन क्यों लिखें. अभी तक जो हमने कहा उसके कुछ डिस्टिंग्विश हम करना चाहेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे. या पहले नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मेरा फेवरेट, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी. यूटिलिटी के अलग अलग टाइप्स हैं जो हम जानना चाहेंगे. डू यू रिमेंबर द कोड वर्ड? किसी को कोड वर्ड याद आ रहा है? फालूदा पिया तेरा सपना पूरा किया. क्वेश्चन तो ऊपर नीचे कर सकते हैं ना अपनी मर्जी. तो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में है फालूदा पिया तेरा सपना पूरा किया, पूरा किया. वेल, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स? डू यू रिमेंबर? सबसे पहले है फालूदा, फॉर्म यूटिलिटी. यूटिलिटी ऑब्टेन बाय कन्वर्टिंग द फॉर्म ऑफ द गुड्स. कुछ याद आ रहा है? जैसे लकड़ी से फर्नीचर बनाया, कच्चा मैगी पका के खाया, वाई वाई नूडल बनाया. वाई वाई खाया, बहुत मस्त है वाई वाई नूडल. तो वाई वाई नूडल जो कच्चा है उसको पका के खाया. वाओ, ऐसा लगता है चाइनीज खा रहे, इतना मस्त है, क्या बात है. तो मुझे वाई वाई नूडल बहुत पसंद है और सर्दी में गरम गरम खाने का तो मज़ा ही अलग है. तो आज तो मैं नाश्ते में वाई वाई नूडल खाऊंगा भाई, बहुत मज़ा आएगा. तो मैं वाई वाई नूडल का पैकेट निकाल के गर्म पानी में डालकर मसाला वसाला जो है उसको डाल के उसको मस्त खाने वाला हूँ. ये कैसी यूटिलिटी है? फॉर्म यूटिलिटी. आटा गूंद कर समझो मम्मी ने रोटी बनाया, फॉर्म यूटिलिटी. कॉटन को क्लॉथ में कन्वर्ट किया, फॉर्म यूटिलिटी. हजार एग्जांपल दे सकते हैं. आई रिपीट, यूटिलिटी ऑब्टेन बाय कन्वर्टिंग द फॉर्म ऑफ द गुड्स. याद है? फालूदा पिया तेरा सपना पूरा किया. प्लेस यूटिलिटी, ये तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं. फॉर्म तो मैंने बोल दिया. क्रिएटिंग यूटिलिटी बाय ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम अ प्लेस वेयर दे हैव लेस यूटिलिटी टू अ प्लेस वेयर दे हैव मोर यूटिलिटी. उस जगह से हटाना है उस गुड्स को जहां उसकी यूटिलिटी कम है और उस जगह ले आना है जहां उसकी यूटिलिटी ज्यादा है. उसको बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी. जैसे हमने वार्म सूट का एग्जांपल ले लिया, स्वेटर वगैरह का. कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी एग्जांपल. एप्पल का एग्जांपल ले लो, मैंगो का एग्जांपल ले लो. कश्मीर से मैंगो, मैंगो नहीं सॉरी, कश्मीर से एप्पल उठा के हम मुंबई ले आए, तो प्लेस यूटिलिटी. और ये कौन क्रिएट करता है? ट्रांसपोर्ट. टाइम यूटिलिटी, स्टोरिंग द गुड्स व्हेन दे आर नॉट रिक्वायर्ड एंड सप्लाइंग देम व्हेन दे आर रिक्वायर्ड. जब जरूरत नहीं, जब संभाल के रखा, जब जरूरत है तब निकाल के यूज किया, उसको बोलते हैं टाइम यूटिलिटी. जैसे आपको मैंने अम्ब्रेला का एग्जांपल दिया, स्वेटर का एग्जांपल दिया, ये सब टाइम यूटिलिटी का एग्जांपल होता है. स्टोरिंग द गुड्स एंड सप्लाई. सर्विस यूटिलिटी, फालूदा पिया तेरा सपना. फालूदा फॉर्म, पिया प्लेस, तेरा टाइम, सपना सर्विस यूटिलिटी, सप्लाइंग सम सर्विस टू द पर्सन. जैसे हम बार्बर के गए और बाल कटवाया, डॉक्टर के गए दवा लिया, सर्विस यूटिलिटी. पोजेशन यूटिलिटी में कई लोग कंफ्यूज होते हैं. ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी है. पोजेशन यूटिलिटी मींस पोजेशन, चेंज ऑफ ओनरशिप. जब ओनरशिप चेंज होगी. आई बॉट 1 kg टमाटो एट द रेट ऑफ ₹20 पर kg. तो मैंने टमाटो वाले को 20 रुपीज दिए और 1 kg टमाटो खरीद लिया. अब ये 1 kg टमाटो का मालिक मैं बन गया.
This is the example of possession utility, change of ownership. Possession. फालूदा पिया तेरा सपना पूरा किया. किया मतलब किया किया. नॉलेज यूटिलिटी. जैसे आपको मोबाइल्स और कंप्यूटर्स की काफ़ी नॉलेज होगी, लैपटॉप्स वगैरह की जो भी है, तो अगर आप अपनी नॉलेज किसको इम्पार्ट करते हो, मोबाइल, लैपटॉप जो भी है, तो वो नॉलेज यूटिलिटी हो गई. तो आई रिपीट, फालूदा पिया तेरा सपना पूरा किया. फॉर्म प्लेस टाइम सर्विस. फॉर्म प्लेस टाइम. रुको. फालूदा पिया तेरा सपना, सॉरी, फॉर्म प्लेस टाइम सर्विस पोजीशन नॉलेज. फॉर्म प्लेस टाइम सर्विस पोजीशन नॉलेज. वेरी गुड. मैं एग्जांपल पूछता हूं, आपको बताना है कौन सी यूटिलिटी है. ठीक है. आटे से बिस्किट बनाया. फ्लावर बोलते हैं इंग्लिश में, फ्लावर से बिस्किट बनाया. जल्दी बताओ कौन सी यूटिलिटी है. यू मेक बिस्किट फ्रॉम फ्लावर. आटे से बिस्किट बनाया. कौन सी यूटिलिटी होगी. वेरी गुड. फॉर्म यूटिलिटी. रत्नागिरी से मैंगोस मुंबई लाके बेचे. रत्नागिरी से मैंगोस मुंबई लाके बेचे. वेरी गुड. प्लेस यूटिलिटी. जूही मोहता ने भी सही आंसर दिया. सर्दियों में स्वेटर पहना, गर्मियों में रख दिया. सर्दियों में स्वेटर पहना, गर्मियों में रख दिया. टाइम यूटिलिटी. ब्यूटी पार्लर जाकर मैंने फेशियल और ब्लीच करवाया और आईब्रोज भी बनवाया. ब्यूटी पार्लर जाकर मैंने फेशियल, ब्लीच और आईब्रोज बनवाए. सर्विस यूटिलिटी. सर्विस. 1 किलो आलू देना. अब ये आलू मेरे हुए, मैंने आपको पैसा दे दिया. ये आलू मेरे हुए. पोजेशन. भाई लैपटॉप में कौन सा लैपटॉप है, क्या उसमें गेमिंग क्या है, कितना रैम है, कितना हार्ड डिस्क है, सब मुझे पता है. नॉलेज. वेरी गुड. देखो धीरे धीरे कितना आराम से हो रहा है अपना काम. चलो ठीक है. देखो क्वेश्चन बैंक साथ में पूरा करते जाओ. क्वेश्चन बैंक हमारा चल रहा है. जिसने नहीं लिखा तो आगे का क्वेश्चन लिख दें. यहाँ तक हमने कर दिया था. क्रिटिसिज्म लिख दो और टाइप्स लिख दो और कोड वर्ड पे अच्छी तरह ध्यान देना है. वेरी गुड. फिर आगे बढ़ते हैं. इतना पहले पूरा कर देना है. जो क्वेश्चन डिलीटेड है वो मैं लिखूंगा भी नहीं, जो सिलेबस में है ही नहीं तो उसकी बात भी नहीं करेंगे. अच्छा, अब आपने इतना पढ़ा तो इनसे रिलेटेड हम डिस्टिंग्विश देख रहे हैं जो बुक में भी है. लेट अस टॉक अबाउट सम डिस्टिंग्विश नाउ. ओपन नोट्स के साथ जा रहे हैं हम. डिस्टिंग्विश में मेरे ख्याल से 3 या 4 है हमारी बुक में. देख लेते हैं. MUTU यूटिलिटी, यूजफुलनेस, प्लेस, टाइम एंड फॉर्म टाइम. ठीक है. जस्ट गिव मी 1 मिनट. साथ में आप क्वेश्चन बैंक में लिखते रहें. प्लेस एंड टाइम एंड आई थिंक फॉर्म एंड टाइम ना एक साथ ही ले लेता. 4 डिस्टिंग्विश है जो भी है. ये साथ में क्वेश्चन बैंक बन रहा है हमारा. देयर आर सम डिस्टिंग्विश बिटवीन आल्सो इन आवर सिलेबस. ओके ठीक है, जो है वो तो करना है. डिस्टिंग्विश बिटवीन. लेट्स हैव अ लुक. बोर्ड में तो 2 मार्क का ही एक डिस्टिंग्विश है. 3 मार्क्स, सॉरी 3 पॉइंट्स आर मोर देन सफिशिएंट. 2 नहीं लिखना है, 3 पॉइंट लिख देना. So in board exam, as per the paper pattern, the distinguish carries only 2 marks. Okay. ठीक है. आगे बढ़े. Let's have a look on the distinguish. Distinguish between जरा देख लेते हैं. पहले हम इजी वाला करते हैं. यूटिलिटी और यूजफुलनेस. यूटिलिटी क्या होता है. वांट, सेटिस्फाइंग पावर. और यूजफुलनेस क्या होता है. समथिंग विच इज बेनिफिशियल टू मैनकाइंड, जो फायदे के लिए हो. यूटिलिटी सब्जेक्टिव है, यू नो, डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. यूजफुलनेस सब्जेक्टिव नहीं है. अगर यूजफुल है, एक को यूजफुल है तो सबको यूजफुल है. एक को यूजफुल नहीं है तो सबको नहीं है. सिगरेट कोई बोलेगा मेरे लिए सिगरेट बहुत यूजफुल है, ऐसा नहीं होता.
एक चीज जिसमें यूटिलिटी है वो यूजफुल हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन एक चीज जो यूजफुल है वो हमेशा यूटिलिटी पोजेस करती है। अभी साबित करता हूं, सिगरेट यूटिलिटी है पर यूजफुल नहीं है, पानी यूटिलिटी भी है और यूजफुल भी है। टू बी वेरी स्मार्ट, तो इट्स वेरी सिंपल, यूटिलिटी वांट सेटिस्फाइंग पावर, usefulness something beneficial, subjective concept not subjective, may or may not be useful, a thing which is useful always causes utility। सिगरेट यूटिलिटी है, यूजफुल नहीं है, पानी यूटिलिटी भी है और यूजफुल भी है, वेरी सिंपल। चलो पहले सिंपल सिंपल ही कर लो, चलो प्लेस और टाइम अभी किया था आपने। प्लेस यूटिलिटी क्या है? क्रिएटिंग द यूटिलिटी फ्रॉम ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम अ प्लेस वेयर दे हैव लेस यूटिलिटी टू अ प्लेस वेयर दे हैव मोर यूटिलिटी। और टाइम यूटिलिटी क्या है? ऑलरेडी ऊपर मैंने बोला है, स्टोरिंग द गुड्स व्हेन दे आर नॉट रिक्वायर्ड, सप्लाइंग देम इन देयर। वार्म सूट का एग्जांपल ले लो, अम्ब्रेला का एग्जांपल ले लो, 2 पॉइंट है तो 2 ही पॉइंट लिखेंगे, वैसे भी एग्जाम में 2 मार्क का ही है। सेम वे आप फॉर्म और टाइम भी कर सकते हैं। फॉर्म क्या था? चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द गुड्स। जैसे हमने एग्जांपल दिया था, जंगल से मैं एक लड़की ले गया, ओह आई एम सो सॉरी, जंगल से मैं एक लकड़ी ले आया और उस लकड़ी का फर्नीचर बनाया, एग्जांपल है, तो वो हो गई फॉर्म यूटिलिटी, वुड इनटू फर्नीचर, या जो एग्जांपल आप देना चाहो जाओ। टाइम यूटिलिटी का पॉइंट सेम है, ठीक है। अब हम ये भी देख लेते हैं, एमयू और टीयू, वेरी क्या बोलते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एमयू क्या है? यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट। टीयू क्या है? ऑल द यूनिट्स। जैसे हम और कंज्यूम करेंगे एमयू कम होगी, जैसे हम और कंज्यूम करेंगे टीयू बढ़ेगी एट अ डिमिनिशिंग रेट। एमयू जीरो या नेगेटिव भी हो सकती है, टीयू जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकती। एमयू कर्व डाउनवर्ड जाती है लेफ्ट टू राइट, टीयू कर्व अपवर्ड जाती है, रीचेस मैक्सिमम एंड देन स्टार्ट्स फॉलिंग। एमयू कर्व वैल्यू इन एक्सचेंज लाती है और टीयू कर्व वैल्यू इन यूज लाती है। डू यू रिमेंबर वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन एक्सचेंज 11th स्टैंडर्ड में आया था। वैल्यू इन यूज इज नथिंग बट द यूटिलिटी एंड वैल्यू इन एक्सचेंज इज नथिंग बट द प्राइस। तो ये भी मालूम होना चाहिए। चलो ठीक है, तो ये है एम यू एंड टी यू। एम यू की कर्व देखो नीचे नेगेटिव आएगी, टी यू कर्व ऊपर जाएगी, बाद में मैक्सिमम पहुंच के नीचे आएगी। एम यू जीरो भी हो सकता है और बाद में नेगेटिव भी जाता है, टी यू कभी जीरो नेगेटिव नहीं आता, ऊपर जाके फिर बाद में थोड़ा सा टर्न मार लेगा बस। तो ये है एम यू एंड टी यू, वेरी गुड। मैं आपको पॉइंट दूंगा, आप मुझे बताओगे कि ये कौन सा टाइप है। क्या पूछना था मुझे, नहीं, ये क्या है वो आपको बताना है। डैश कर्व ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इस टॉपिक से रिलेटेड बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। डैश कर्व ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कौन बताएगा? कौन सी कर्व है जो हमेशा नीचे की तरफ जाती है? डैश कर्व ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इज इट एम यू कर्व और टी यू कर्व? प्लीज आंसर फास्ट। वेरी गुड, एम यू कर्व। Dash curve slopes upward from left to right, reaches maximum, then starts falling. Slopes upward from left to right. TU curve. When dash is zero, dash is maximum. Come on, challenge there. When dash is zero, come on, Vinith. Dash is maximum. When MU is zero, TU is maximum. Okay, last question. When MU is negative, dash starts falling. When mu is negative, that starts falling. Come on, Venkateshwara, answer नहीं दे रहे आप? Very good. Tu starts falling. Okay. Now we have a very strange question, but very good question. ये सिलेबस में नया डाला गया है, पहले नहीं था ये, सीए वगैरह में है, और मैं तो सीए सीएस वगैरह में भी इको पढ़ाता हूँ, ऐसी बात नहीं कि नहीं पढ़ाता हूँ। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनलिटी एंड प्राइस। ओके, अभी तक आपने जितने भी एग्जांपल दिए वहां हम लोग फ्री में खा रहे थे, फोकट में मिल रहा है, खाते जा रहे खाते जा रहे खाते जा रहे, पेट भर गया, रुक गए। लेकिन अगर आपको पैसा देना पड़ा तो आप सोचोगे खाने में। अभी प्रूव करता हूँ, अगर आप उन शादी में जा रहे हैं और शादी में कोई गिफ्ट भी अपने को देने की जरूरत नहीं, हम लोग ने कार्ड में लिखा है नो गिफ्ट प्लीज, तो फिर क्या को गिफ्ट देने का, नहीं बोले तो क्यों दो। और आप शादी में गए हो और पानी पूरी काउंटर है, आप मस्त खाओगे, ढपाढप 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 ढपाढप। लेकिन यही पानी पूरी अगर खरीद के खाएंगे तो आई थिंक 1 प्लेट, या बहुत ज्यादा हुआ तो 2 प्लेट्स। ऐसा नहीं है कि मेरा पेट भर गया, लेकिन क्या है कि मेरे पैसे लग रहे हैं। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मुझे ऐसा लगेगा, आई विल फील लाइक माई मनी इज नॉट गेटिंग द इट्स फुल वर्थ, मुझे पैसा वसूल नहीं हो रहा, सो आई विल स्टॉप देयर।
नॉट वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, लेकिन हम पढ़ के तो सब जा रहे हैं, आपको मालूम है। वैसे आपको मालूम है 100% लगभग ऑप्शन है पूरे पेपर में। पेपर पैटर्न मैंने आपको बताया था, पहले शेयर किया था। हर क्वेश्चन में इंटरनल ऑप्शन है, जैसे 6 है तो 3 ही करो, 8 है तो 4 ही करो, 4 है तो 2 ही करो। तो वी आर एट अ वेरी सेफ साइड, बट फिर भी हम सब पढ़ के जा रहे हैं। ओके, तो ये देखो रिलेशन बिटवीन प्राइस समझने के लिए एग्जांपल लेना है। लेट अस assume marginality is 10 and market price per unit of x is 50. ना आप x खाते जा रहे हो, ये आपकी मार्जिनलिटी है, समझो 10 8 7 5 3 1 जो भी है। अब आपको क्या करना है इस आंसर में, आपको मार्जिनलिटी को मनी में कन्वर्ट करना है, ये सबसे बड़ी बात है। बिकॉज द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट रिलेशन बिटवीन एमयू एंड प्राइस। अगर एक यूनिट 10 रुपए का है तो 10 इंटू 10 तो 100 रुपीज की उल्टी मिली मुझे, यहाँ से 80 रुपीज की उल्टी मिली, 70 50, और ये प्राइस है, प्राइस फिक्स है 50 रुपीज ना। आप देखो, पहला यूनिट मेरी इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट बहुत ज्यादा थी, मुझे उल्टी ज्यादा मिली, तो मनी वैल्यू भी उसकी ज्यादा हुई, 100 रुपीज हुई। जबकि आई एम पेइंग ओनली 50 रुपीज, तो 100 इज ग्रेटर देन 50, मनी वैल्यू ऑफ मार्जिनलिटी इज ग्रेटर देन 50। इन अदर वर्ड्स कैन आई से ये खाना वसूल है, इट्स वर्थ। अच्छा, कंजम्पशन बढ़ते जा रहा है, यूटिलिटी कम होती जा रही है, 80 70, अभी भी वर्थ है, लेकिन क्योंकि 50 से ज्यादा है, अभी भी वर्थ है, अभी भी वर्थ है, लेकिन अभी वर्थ नहीं है। फिफ्थ में आप देख रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका पेट भर गया, आप खाते जा रहे हो, लेकिन मनी वैल्यू 30 है जबकि आप पे कर रहे हो 50 रुपीज, तो ये वर्थ नहीं है। तो इकोनॉमिक्स ये कहता है जब आप प्राइस के साथ रिलेशनशिप बताते हो तो आप सिर्फ उतना कंज्यूम करोगे जब तक आपका मनी वैल्यू ऑफ मार्जिनलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू प्राइस हो। और इस एग्जांपल में यू विल कंज्यूम अप टू द फोर्थ यूनिट। एक बार मनी वैल्यू ऑफ मार्जिनलिटी प्राइस से कम हो जाएगा तो आप कंज्यूम नहीं करोगे। दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो ये पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यही पूरा लिखा हुआ है, देखें एवरीथिंग इज गिवन हियर। तो ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। हाँ, ये मैं जरूर बोलूंगा, इसका मतलब आप इक्विलिब्रियम पे कब पहुंचोगे, जब आप फोर्थ यूनिट पे पहुंचोगे। इसका मतलब वेर द आंसर इज इक्वल टू, तो मार्जिनलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। ये देखो यहाँ जब इक्वल होगा दैट पॉइंट यू विल स्टॉप। इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं इसको, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। ओके, देन एज वी नो देयर आर सम एग्री और डिसएग्री, एंड यू नो वेरी वेल कि एग्री डिसएग्री कुछ नहीं बल्कि रिपीट क्वेश्चन होता है। बट मेनी टाइम्स आई हैव सेड एंड अगेन आई विल से, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। पहले आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और फिर एनालाइज करना है कि यार ये कौन से आंसर से रिलेटेड है। पहले तो वो क्वेश्चन को सोचकर एग्री या डिसएग्री 100% तय करना है। अगर एग्री है, आपने लिखा नो आई डू नॉट एग्री और आंसर सही लिखा, तो भी आपको 0 मिलेगा क्योंकि आपने यस की जगह नो लिख दिया है, और नो की जगह यस लिखा तो भी ऐसे ही होगा। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एग्री है तो यस आई एग्री, नहीं है तो नो आई डू नॉट एग्री। लेट्स हैव अ लुक। पहला ही थोड़ा अलग है, इज द लॉ एप्लीकेबल टू मनी। ये थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, मतलब सेपरेट क्वेश्चन था। मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया, यस इट इज एप्लीकेबल। जैसे जैसे आप और पैसा जमा करते जाओगे, पैसे से मिलने वाली इंपॉर्टेंस आपकी नजरों में कम होती जाएगी। द एवरी एडिशनल इंपॉर्टेंस ऑफ द मनी विल गो ऑन फॉलिंग। और देखो इकोनॉमिक्स में एक पैटर्न होता है, हर रैशनल इंसान खर्च करता है इस पैटर्न में। फर्स्ट यू गो ऑन नेसेसिटी, देन कंफर्ट्स, देन लग्जरी। यहाँ कोई ऐसा होगा जिसका खुद का घर नहीं है, भाड़े पे रहता है, लेकिन खुद का स्विमिंग पूल है? नहीं होता ना। पहले आप नेसेसिटी पूरी करते हो, रोटी कपड़ा मकान, हेल्थ एजुकेशन, फिर कंफर्ट्स। अगर ये सब हो गया फिर अपन गाड़ी वाड़ी ले लेंगे, बड़ा फ्लैट ले लेंगे, भैया बंगला ले लेंगे, और लास्ट में आता है लग्जरी। खुद का स्विमिंग पूल होगा, खुद का होम थिएटर होगा, ने ये ने वो ने वडेवा, खुद का हेलीकॉप्टर होगा। मालूम पड़ा अर्जुन हेलीकॉप्टर में कॉलेज जाता है, एंड सो। तो इट इज डेफिनेटली एप्लीकेबल टू मनी। देर आर नो रियल एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डीएमयू। यस आई एग्री, अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया, एक्सेप्शन है। अरे बाबा है, अरे बाबा है ना, पर एक्सेप्शन रियल नहीं है। क्यों रियल रियल नहीं है? ओके, हाँ विला वगैरह। क्यों रियल नहीं है? क्योंकि हर एक्सेप्शन में वन और द अदर एजम्पशन इज नॉट सेटिस्फाइड। सेम एक्सप्लेन किया है मैंने, एक बार वापस देख लो। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड कार्डिनली। आई रिपीट, कार्डिनल मतलब काउंटेड इन नंबर्स। आंसर नो।
हर्षाली, यूटिलिटी कैन नेवर बी मेजर्ड इन नंबर्स. एज आई सेड, यूटिलिटी एक एहसास है, फीलिंग है, विच कैनॉट बी एक्सप्रेस इन नंबर. जैसे मेरा और कैटरीना का प्यार आसमान से भी ऊंचा है, सागर से भी गहरा है. कैन यू मेजर इट? नो, nobody can measure it. Okay, then law of DMU depends upon many assumptions. Yes, I know that, you know that. UC square, NOR square, बहुत सारे assumptions हैं. वो assumptions आप लिख सकते हैं एग्जाम में. MU and totality is same. हा हा हा, जोक मार रहा है पागल. MU पूरा अलग कॉन्सेप्ट है, TU अलग है, जो ऊपर हमने आंसर में डिस्कस किया है. एक एक यूनिट से जो यूटिलिटी मिले वो MU है, और सबसे मिले वो TU है. याद आया आपको? एफ ये वाला सिलेबस से निकाल दिया गया है. एफ एग्री डिसएग्री सिलेबस से निकाल दिया गया है, क्योंकि लॉ ऑफ डीएमयू का इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉ क्वेश्चन से निकाल दिया गया है. तो उसका एग्री डिसएग्री भी तेल लेने जाए. गोस टू बाय ऑयल. बोलो जल्दी. गोस टू बाय ऑयल, तेल लेने जाए. वेरी गुड. जो सिलेबस में नहीं है सो हम पढ़ेगा भी नहीं. DMU has many assumptions. ये तो अभी ऊपर भी पढ़ा हमने, UC स्क्वायर NOR स्क्वायर. एंड ऑब्जेक्टिव्स आपको अच्छी तरह मालूम है, हर ऑब्जेक्टिव हमने क्लास में डिस्कस किया है. तो लेट मी रिपीट, हमने अपनी इको की बुक में ऑब्जेक्टिव साथ में डाल दिए गए हैं. तो जब साथ में डाल दिए हैं तो मतलब कवर कर लिया है. एज आई सेड, OCSP का मुझे पता नहीं, मैंने बुक देखी नहीं कि सर लोगों ने OCSP में डाला हुआ है क्या ऑब्जेक्टिव बुक में, क्या अलग से देंगे? यू मे बी हैविंग एनी आइडिया? ऑब्जेक्टिव्स टॉपिक वाइज क्या अलग से देंगे या दिए हैं? एनी आइडिया? So I repeat once again, as far as eco is concerned, all objectives are in the book itself. दिए हैं? Very good, very good. Okay. बुक में दिए हैं क्या अलग से दिए हैं? बुक में ही है क्या? So I repeat, ये हमने सब कवर कर लिया. Okay, Zaid bhai. Now you know all the objectives. We have done them. Very good. अच्छा, कैसे करना है ऑब्जेक्टिव्स? पहले आंसर के साथ दिए, पहले टॉपिक आपको पूरा पढ़ना है, जो जैसे हमने रिवाइज किया, जैसे अभी ये रिवीजन लेक्चर आप देख सकते हो. वेरी गुड. मॉडल पेपर्स के साथ. और फिर आपको ऑब्जेक्टिव्स गो थ्रू करने हैं. देखो सब आंसर्स दिए हुए हैं तो मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा. गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक ऑब्जेक्टिव्स मैंने क्लास में पूरे सॉल्व किए थे, मार्क करा के दिया था आपको. तो दैट्स इट. अच्छा, क्वेश्चन बैंक में अगर कुछ बाकी है तो जल्दी से लिख दो, टाइम हो रहा है. देन वी विल स्टॉप बिकॉज अपना टाइम हो रहा है, हो गया समझो. तो क्वेश्चन बैंक आई होप क्वेश्चन 10 तक आपने लिखा था, और कुछ बाकी है तो मैं अभी लिख लेता हूँ. टाइप्स हो गया था, बस यही लास्ट था. एग्री डिसएग्री तो हम क्वेश्चन बैंक में लिख के टाइम वेस्ट करते नहीं है. तो यस, क्वेश्चन 10 10 ही क्वेश्चन है. एग्री डिसएग्री फिर से लिख के क्यों टाइम वेस्ट करें? तो हैव यू मेड द क्वेश्चन बैंक? सबने क्वेश्चन बैंक बना दिया है? तो एग्जैक्टली टाइम के अंदर हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है. ये टॉपिक का भी रिवीजन हो गया है. ये देखो, ये रहा आपका टॉपिक, ये रहे आपके क्वेश्चंस. ओके, तो वेरी गुड. हैव अ नाइस डे. टेक केयर. नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा, बेसिकली वीक में एक लेक्चर आ रहा है और आराम से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. और क्लास चालू हो जाएगी तो क्लास में कंटिन्यू होगा. सो बाय फॉर नाउ. हैव अ नाइस डे. टेक केयर. So we'll meet next time with micro and macro. See you then. Take care. Bye everyone.